हम शिशु है अज्ञानी माता, तीन चरणों का प्यार दे। वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे।
धन्यवाद। मेरा निवेदन AR चौधरी जी से कि वे गणमान्य अतिथियों को मंच पर सादर ले आए। भारभूषण भारती जी, कुलपति महोदय प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी और समिता कटारिया जी, DC कुरुक्षेत्र, श्री मिशेल टेनिनो, मेंबर ICHR, एयर मार्शल SG इनामदार जी, प्रोफेसर NN डोगरा जी, श्री प्रशांत भारद्वाज जी, प्रोफेसर KS वाल्दिया जी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, डॉक्टर VM के पुरी जी, और अब मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत भाषण के लिए चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी प्रोफेसर NN डोगरा जी, वे आए और सबका स्वागत प्रस्तुत करें। Good morning to you all and welcome into Saraswati International Conference at Kurukshetra University. I, on behalf of Department of Geology, Kurukshetra University, Kurukshetra, and Haryana Saraswati Heritage Development Board, extend a warm welcome to Honorable Shri Bharat Bharti ji, Vice President, Saraswati Nadi Shodh Sansthan, and Chairman, Haryana Staff Selection Commission. The Chief Guest of today's inaugural session of 2 days international conference on Saraswati River. I am also honored to welcome Honorable SG Inamdar, Air Vice Chief, and Padam Shri Michel D. Nano as a guest of honor in this inaugural session. The organizer of this conference, that is Kurukshetra University and Saraswati and Haryana Heritage Saraswati Board, welcome our esteemed Vice Chancellor, Professor Kailash Chandra Sharma, who very kindly agreed to preside over the inaugural function of this international conference. The organizers of this international conference are grateful and feel honored to be with us. Padam Bhushan, Professor KS Waldia, an internationally renowned geoscientist and academician and former Vice Chancellor of Nainital University, Kumai University Nainital, who is also author of many books in the field of geoscience, including books on Saraswati River. I am sure that all the participants in the technical session of this conference will be enormously benefited with the deliberations and guidance of Professor Waldia as regards the Saraswati River delineation and paleo channels and their geometry and subsurface stratal architecture. I also welcome Shri Prashant Bhushan Bhardwaj, Deputy Chairman, Haryana Saraswati Heritage Development Board, who had been instrumental in the entire process towards the organization of this seminar and in the coordination of this international conference. We also welcome Madam Sumita Kataria, Deputy Commissioner Kurukshetra,
and Shri Gaurav Antil, City Magistrate and CEO, Kurukshetra Development Board, for their gracious presence and cooperation extended in organizing this international conference. We extend our welcome to all the international participants and are delighted to see them here, specifically Michel Danino, member ICHR from France, who has also authored a book, a very popular book, on the lost river on the trails of Saraswati, and has thoroughly studied Indian civilization and culture and contributed on aspects of Indian archaeology and ancient history. We acknowledge Professor Ashok Aklujkar, Professor Emeritus, University of British Columbia, Professor Bhudev Sharma, former President, Vice Chancellor, Hindu University of America, and Professor at Clark's Atlanta University, USA, Dr. Nicholas Kajanas, Dr. Nilesh Neelkant Oak, Sri Sujain Redelia Sullivan, for their interest in the theme of this international conference. We also welcome all the participants from the different parts of India who have come over here in this international conference. I also welcome all the deans, chairpersons, faculty members, and teachers from the different schools who have shown their interest and come over here in this international conference. I welcome especially the chairman music department and the students of the Kurukshetra University geology department and music department who have been busy for the last 2 days in the organization of this conference. Thank you. सरस्वती वास समाकुतो रतिः सरस्वती वास समाकुतो गुणाः सरस्वतीं प्राप्य दिवंगताः जनाः सदा स्मर्ष्यन्ति नदीं सरस्वतीं। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ द थीम प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर A.R. चौधरी जी को, जो इस संगोष्ठी के संयोजक हैं। प्रोफेसर A.R. चौधरी जी वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। A very good morning to all of you. Shri Bharat Bhushan Bharti ji, Chief Guest of today's function, Vice Chancellor Sahab, Professor K.C. Sharma ji, DC Madam, और आप सभी देवियों और सज्जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है जहां पर आना पुण्य है, जहां पर रहना पुण्य है, और इसीलिए कहा गया कि जो कुरुक्षेत्र में ब्रह्मलीन होता है वो मुक्ति पा लेता है। और इसी कुरुक्षेत्र में एक नदी भी बहती थी जिसका प्रमाण हम मानते हैं ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर की बात करें, बहुत हमें, क्योंकि हम काफी लोग कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये नरवाना ब्रांच से इसमें पानी आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को टटोलें तो नरवाना ब्रांच कहाँ से आती है? आगे उत्तर है भाखड़ा से आती है। उसको थोड़ा और टटोलें तो कहाँ से आती है? तो आपको पता चलेगा कि ये कैलाश पर्वत की तलहटी में जो बहुत बड़ी झील है जिसको राक्षस ताल बोलते हैं,
मानसरोवर बोलते हैं, जिनके पास से सतलुज नदी निकलती थी, वहां का जल यहां आता है। तो ये एक दिव्य स्थान है। ये दिव्य स्थान पुरातन काल में भी था और आज भी है। और सरस्वती नदी की बात करें तो हमें जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में वर्णन है कि एक बहुत बड़ी नदी थी जो हिम शिखरों से निकलती थी और समुद्र में मिलती थी। इसका उल्लेख जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे वेद हैं, सब में इसका उल्लेख है। तो एकदम से दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है कि मैंने तो ये नदी देखी नहीं, मुझे क्या पता ये कहाँ थी, ये कभी बहती भी थी या पूरी कल्पना है। इसका जवाब आप सभी को पता है। मैं थोड़ी मदद करूंगा आपको, आप ही के पते जवाब को समझने में। यहाँ जो मिट्टी है, जो बालू है, ये कहाँ से आई? कौन से ट्रांसपोर्टर ने, कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने पूरे के पूरे इंडो गैंजेटिक एलुवियल प्लेन्स को डिपॉजिट किया? उत्तर सिर्फ एक ही है, परम पिता परमात्मा द्वारा चलाई गई नदियां। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो कोई भी पेरेनियल रिवर यहां आज नहीं दिखती। हरियाणा दो पेरेनियल रिवर्स के बीच में है, एक सतलुज और एक यमुना। कोई भी हरियाणा से नहीं गुजरती। तो वो कौन सी नदी थी? वो कौन सी विशाल नदी थी जो कि अपने अस्तित्व को आज भी हमें अन्न देकर, जल देकर, पुष्टि देकर, पोषण देकर आज भी हमें कह रही है कि जागो, मुझे पहचानो। ये सरस्वती नदी ही है। ये सरस्वती नदी की ही भूमि है, सरस्वती नदी का ही जल है, सरस्वती नदी द्वारा दी गई ही उपजाऊपन है इस मिट्टी का, जो आज हरियाणा पंजाब के साथ मिलकर ग्रेनरी ऑफ द कंट्री बना हुआ है, ग्रेन बाउल ऑफ द कंट्री बना हुआ है। और ये जो शोध कार्य था सरस्वती नदी का, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1998 में विधिवत रूप से स्टार्ट हुआ और 2002 में इसके बारे में जब और काम किया गया तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2008 में एक अलग से लैब एस्टेब्लिश करवाई गई, सरस्वती नदी रिसर्च की जो लैब थी, सरस्वती रिवर रिसर्च लैब, जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में है। और यहाँ पे जो अध्ययन हुआ उससे पहली बार पता चला कि कलायत से होकर एक ऐसी नदी गुजरती थी जो कि ट्रांस हिमालयन रिवर थी। उस रिवर के जो अवशेष थे मिट्टी के रूप में, मिनरल्स के रूप में, वो मिनरल्स थे जो इंडस सांगपो सूचर जोन में पाए जाते हैं। आप सब ने पढ़ा होगा कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो जो उस टकराने में 6 से 8 गीगा पास्कल का जो प्रेशर था, उसमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो मिनरल्स हमें कलायत में मिले। और वो सारे के सारे मिनरल्स बिल्कुल एंगुलर और वेरी एंगुलर कैटेगरी में थे। ये जिन मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको डेंस मिनरल्स बोलते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1। नॉर्मल फ्लूवियल डायनामिक्स में अगर ये सेडिमेंट्स चलते हैं रिवर के अंदर तो ये ट्रैक्शन और सॉल्टेशन से चलते हैं। और ट्रैक्शन और सॉल्टेशन रिवर बेड पे इंश्योर करता है कि पहले 100 किलोमीटर में ये सारे के सारे ग्रेन्स सब राउंडेड, सब एंगुलर हो जाएं, घर्षण से इनके कोने टूट जाएं। लेकिन कलायत में हमें 70-80% ऐसे ग्रेन्स मिले जिनके कोने बरकरार थे, नुकीले थे। इससे एक ही बात का पता चला कि जो नदी कलायत से गुजरती थी उसके अंदर ये मिनरल्स बहते हुए आए, नीचे रगड़ते हुए, घिसते हुए नहीं आए। एज सस्पेंशन दे वर ट्रांसपोर्टेड।
और सस्पेंशन में अगर ट्रांसपोर्ट होंगे इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा एजिटेटेड था। पानी की एजिटेशन आप सब लोग जानते हैं, इट इज लिंक्ड विद वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो अ gigantic river which roared and in which the peaks of mountains floated as lotus stems. This is a description of Rig Veda, that this is how the Saraswati river looked like, and what we got in Kalayat was an example of it. And after that, as if the divinity was waiting for us to move ahead, what we got at Bhaur Seda was simply mind-blowing. यहाँ पर हमारे बीच में श्री कृष्ण म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र राणा जी बैठे हैं, और डॉक्टर राजेंद्र राणा जी ने भौर सैदा में एक बहुत पुरानी नदी का अवशेष ढूंढा, और उस अवशेष पे जब हमने काम किया तो पता चला कि वो अवशेष 2 किलोमीटर चौड़ी नदी का है, और उसके अंदर नीचे बिल्कुल बहुत बढ़िया रिवर सैंड है, और जैसे जैसे ऊपर उठते हैं पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है कि कैसे एक ग्लेशियल फेड रिवर एक रेन फेड रिवर में ट्रांसफॉर्म होती चली गई। उसके बाद हरियाणा सरकार ने सरस्वती को और बढ़िया रूप देने के लिए एक बोर्ड की गठन किया, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। और इसके साथ साथ जो हमारा सरस्वती का जिस महान विभूति ने सरस्वती नदी को हरियाणा में खोजने का और उसको एक लेवल पे लाने का काम किया, श्री दर्शन लाल जी जैन, उन्होंने पिछले साल यमुनानगर में खुदाई शुरू करवाई। मुगल वाली गांव में हमें वो अवशेष मिले जो बताते हैं कि यमुनानगर आदि बद्री के पास से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि नदी बहती थी, मान लिया, भगवान ने हमें एक ही चीज दी है, वो है समय। तो दिल में प्रश्न उठता है, नदी बहती थी, नदी लुप्त हो गई, मैं आज इस पे समय क्यों दूं? समय इसलिए देना जरूरी है क्योंकि सरस्वती नदी की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं जल की, और जल आप जानते हैं जल ही जीवन है। और हरियाणा में लें या कहीं और लें, जल की बहुत कमी है। जितने भी हमारे पास स्रोत थे, हमने उन सब स्रोतों का जितना दोहन हो सकता था कर लिया, और जो बचा है उसका कर रहे हैं। एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास है ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर दैट वाज फ्लोइंग इन द सरस्वती रिवर, हैव वी ऑल लॉस्ट इट टू द ओशन, और स्टिल we have billions of gallons of fresh water waiting deep beneath in deeper aquifers to be exploited. अगर हम सरस्वती रिवर के पेलियो चैनल्स को ढूंढ पाएं, उनसे जुड़े हुए एक्विफर्स को ढूंढ पाएं, तो शायद हरियाणा में जो पानी की कमी है उसका हम बहुत बड़े स्तर तक और बहुत लंबे समय तक हम पानी की कमी से अपनी निजात पा पाए। तो इन सब विषयों पर सरस्वती नदी पर बहुत शोध कार्य हो रहा है, और विश्व में अलग अलग लोग अपनी अपनी तरह से इस पे शोध कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में शोध हो रहा है, आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में, संस्कृत में, हर जगह हम अपनी पहचान ढूंढने में लगे हैं। तो एक विचार मन में आया कि क्यों ना हम सभी से करबंद निवेदन करें कि आपने जो भी कार्य किया है वो हमारे साथ साझा करें, हमें अपने ज्ञान की गंगा में और लाभान्वित करें। और इसी उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस
माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ हैं और हमारे कुलपति डॉक्टर केसी शर्मा जी यहाँ हैं। इन दोनों के आशीर्वाद से और श्री प्रशांत भारद्वाज जी जो हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन हैं, इस बोर्ड के चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो जब हमारे साथ हमारे सारे अग्रणी हमारे साथ हैं, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें लगा इससे उपयुक्त कोई समय नहीं होगा सरस्वती के बारे में चर्चा करने का, सरस्वती के बारे में ज्ञान को अर्जित करने का। और उसी संदर्भ में आप सभी को यहाँ निमंत्रण दिया गया और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आप यहाँ आए और इस जो आगे सत्र चलेंगे, 7 सत्र हैं हमारे, उसके अंदर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हम सभी को लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सरस्वती दिशद्वत्योर देव नद्योर्यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। हम सब सौभाग्यशाली हैं इस ब्रह्मावर्त प्रदेश में, इस आर्यावर्त में, इस कुरुक्षेत्र में एक बड़े महान कार्य के हम साक्षी हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुमित्रा कटारिया जी को, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की उपायुक्त महोदया हैं, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। परम आदरणीय श्री भारत भूषण भारती जी, मुख्य अतिथि मान्यवर श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी, वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, श्री प्रशांत भारद्वाज जी, डिप्टी चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, और बहुत ही सम्मानित मंच पर उपस्थित विद्वान जन जो बहुत सारे मुल्कों से यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस ऑगस्ट असेंबली में बैठे हुए हमारे टीचर्स, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स, इतने विद्वानों के बीच में आकर के कहीं थोड़ा सा लघु मैं महसूस कर रही हूँ। मुझ में नहीं है वो ज्ञान, वो विद्वता, वो स्कॉलरशिप जो आप सब समेटे हुए हैं, लेकिन इस धरा से जुड़े होने के कारण एक टीस से मैं वाकिफ हूँ। जैसे इन्फर्नो में डांटे की एक पंक्ति आती है, आई वेल्ड नॉट सो ऑफ स्टोन आई ग्रू विद इन। आज कुरुक्षेत्र डार्क जोन में है। हम एक भी ट्यूबवेल और लगाने की स्थिति में नहीं है। पानी की इतनी भारी कमी, और दूसरी ओर हमारे यहाँ एक आयरनी है, विडंबना है। It is not the scarcity which is the problem, it is the abundance which is the problem. जितना पानी हम जमीन से ले रहे हैं उसको हम खेरू बेरू कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं। इस सारे विडंबनाओं के बीच इस पुण्य धरती पे काम करते हुए मैं स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे पेवा में भी काम करने का मौका मिला है। आज विद्वतगण सरस्वती नदी थी, क्या नाम था, कहाँ, कब, और उस विचारों से हम सबको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती नदी की खोज कहीं हमारी उस टीस से जुड़ी है जो माँ के स्पर्श से है, माँ के स्पर्श से जुड़ी है। मैंने पेवा के लोगों में एक अद्भुत बात देखी है, वो सरस्वती को मैया कहते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि हम लापता नदी की खोज के बहाने कहीं हम अपने अस्तित्व की खोज की तलाश कर रहे हैं। हम तलाश कर रहे हैं अपना अस्तित्व, अपनी जड़ों को। इस दृष्टिकोण से यहाँ पधारे सभी विद्वतगण का मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और बहुत सारी उम्मीद जगती है कि जिन प्रयासों को लगभग 3 दशक से मैं स्वयं साक्षी हूँ, श्री दर्शन लाल जैन जी जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है कि आज उन्हें कितनी खुशी होगी कि हम सरस्वती नदी शोध संस्थान जो उन्होंने स्थापित किया, आज उसी शोध को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वतगण यहाँ पे पधारे हुए हैं और एक यात्रा चली हुई है। सरस्वती यात्रा आदिबद्री से आरंभ हो करके हर उस पूरे पड़ावों पे गुजरती हुई निकलेगी और कल हम कुरुक्षेत्र में भी उसका स्वागत करने वाले हैं। मैं श्री दर्शन लाल जैन जी के उन प्रयासों के प्रति भी नमन करती हूँ और पुनः आप सबका जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना है इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।